सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। चलो श्रीकांत नाम जोशी जी महाराज। पिछली बार का आर्टिकल था तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल था। आप लोग ने पढ़ा होगा मेडिटेशन और ध्यान जप के ऊपर, और वो ऐसे महापुरुष का था जो मेडिटेशन में प्रतिष्ठित थे, यतीश्वरानंद जी महाराज। तो उनके उसके ऊपर जितनी भी टीचिंग्स इधर उधर स्कैटर्ड थी, उनको कलेक्ट करके ये आर्टिकल बना था। तो इसमें थोड़ा रिपीटिशन भले हुए, लेकिन रिपीटिशन इन चीजों में आवश्यक है। यानी हम लोग भी तो सभी चीज बार बार वही काम करते हैं, तो मेडिटेशन को भी बार बार पढ़ने में क्या नुकसान है। तो जप के बारे में, मेडिटेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, भले ही थोड़ा रिपीटिशन होवे, लेकिन ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है और इसको हम इस बार डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस भी 6-7 लोगों ने पूछे हैं, मतलब ये है कि डिस्कशन अच्छा होगा। मेरा सजेशन है आप लोगों से सबसे कि बड़ी केयरफुली इसको सुनिए। चलो भाई श्रीकांत नाम जोशी इसकी समरी करें। जी महाराज प्रणाम। रामकृष्ण परिवार के सभी भक्तजनों को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया है, आई एम प्रेजेंटिंग ए शॉर्ट समरी ऑफ द आर्टिकल मेडिटेशन पार्ट 1 बाय श्रीमद स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज। पार्ट 2 के पार्ट 1 पार्ट 2 बाय श्रीमद स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज। As we all know, he was vice president of the Ramakrishna Mutt and Mission and a disciple of Srimad Swami Brahmanandaji Maharaj. The article covers a very large horizon of spiritual activities covering japa, control of mind, power of mantra, Ishta Devata, and of course the meditation and the techniques. The meditation part covers aspects of meditation on Guru, form of Ishta, and few techniques of the meditation. I will go through the article as I have marked and as I could with my small wit or wisdom or whatever I could understand. First is japa. Repetition of the divine name is japa. We take up a name as his holy symbol, and by means of japa, we try to realize his presence. Patanjali says, तद जप तदर्थ भावनम। ये पतंजलि योग सूत्र का 28वां सूत्र है। महाराज के लेक्चर्स में हमने इसके बारे में काफी जाना है। While repeating his name, we should think of his noble attributes, infinite love and infinite bliss. Mere repetition is not much of use, though it has its own effect on the mind. Artha bhavanam is very essential. Counting the beads only 100 times or doing japa for 15 minutes a day is not enough for spiritual aspirants. The time devoted to it should be increased day by day. We should be able to experience the love and bliss of God during japa and meditation. Then Maharaj says further that how many times we should repeat. How many times should one repeat the holy name? In a way, it is good to fix a number, as the mind may deceive us and try to escape from the daily exercise. The utterance of the mantra and japa in the proper spirit, even once, purifies the mind. Instantly, the mind becomes delighted and blissful. If we practice regularly, everything will become clear. We should repeat the mantra at least 2000 times a day at first, increasing the numbers slowly. That is about 20 mala every day minimum. That is what Maharaj said. In the beginning,
You have to draw your mind again and again towards God. These efforts are like putting dots in a line. ये महाराज ने भी हमें उनकी क्लास में झगड़िया में बताया था कि मेडिटेशन और जप में फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो डॉट्स हैं और मेडिटेशन जो है वो उन डॉट्स को ज्वाइन करना है. Initially, the gap between the dots would be big. Gradually, they should come nearer and nearer to one another and then become a continuous straight line. The mind, which till then was touching God at intervals, now flows to Him like a continuous stream. This is how japa leads to meditation. Then we come to the second point, control the mind with the help of God's name. Our efforts should be to remain in the sattvic mood as much as possible, but the mind will fly away. But the mind will not oblige us. It is difficult to make a frontal attack on the mind and forcibly control it. The better means is to try to pacify it and elevate it with the help of God's name. महाराज श्री इस पर्टिकुलर लाइन को बाद में मुझे क्वेश्चन एक इसके ऊपर था, वो मैं बाद में एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछूंगा. अभी आगे पढ़ता हूँ. जपा शुड नॉट बी डन लाइक ए डे लेबरर डूइंग हिज लेबर. The divine name represents the divine personality. Think that He is everywhere and in everything. Repeat the mantra, understanding its meaning. We should be clear about certain basic facts in meditation and japa. It is the formless alone that assumes forms and comes to us as divine incarnation. The different methods of meditation depend upon the aptitude and stage of spiritual evolution of the aspirant. महाराज ये जप के बारे में I will try to read 3 quotes. एक जिसमें करीब 4000 जुड़े हैं. हर संडे को 1 घंटा एक्स्ट्रा देन योर डेली रूटीन करना है. उसमें कोट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं. तो आई विल ट्राई टू, इफ यू अलाउ मी, आई विल ट्राई टू रीड 3 quotes. अरे डोली, और डोली जी, ब्रह्मानंद जी महाराज का इटर्नल कंपेनियन से कोट है. Practice japam whether you like it or not. As you persist, the mind is certain to become absorbed in contemplation. To attain spiritual tranquility, you must keep up a regular practice, even against your inclination. ये ब्रह्मानंद जी महाराज का कोट था. एक दूसरा कोट है विज्ञानंद जी महाराज का. At the time of death, a man loses his wits. He becomes enveloped in a sort of mental darkness. If only once he can utter the name of God, at that time he may be saved as God takes charge of him. Unless one has acquired the habit of constantly thinking of God by long practice, everything becomes confused on account of the pranks of death, and one cannot think of God even once. So it is necessary to constantly meditate on Him and pray to Him. सुनो जी महाराज, वो अपन बाहर के कमेंट मत करो. जो यदि आर्टिकल में है उसी को लो, क्योंकि नहीं तो फिर वो कमेंट्री हो जाएगी. वी वांट द समरी. जी महाराज, जी जी. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. फिर आता है पावर ऑफ मंत्रा. It is commonly stated that by repeating the name of the Lord, desires will be eliminated. Is it really so? Though we repeat His name, our desires do not disappear because we do not know the proper way to repeat His name. We do not have faith in His name. Sri Ramakrishna said, if you stand under a tree and clap your hands, immediately the birds will take to wings. Similarly,
Japa will drive away the sin. ये इसके ऊपर महाराज तोतापुरी महाराज भी ठाकुर को बोलते थे कि रोटी क्यों ठोक रहे, क्यों रोज शाम को ठाकुर ताली बजा के माँ का नाम लेते थे। तो वो एक प्रसंग याद आ गया था मुझे। हाँ ठीक है। The mantra can work miracles. Dwell on the meaning while repeating it. Om represents the all-pervading spirit. It is bliss itself. If you can imagine it and experience it, then it is wonderful. Beginners have to take up the worship of a deity. The mantra, for instance, may represent the aspect of love. The deity is thought of as the embodiment of infinite love. In these mantras, first there is the word Om, then words like Radha Kantaya or Ram Krishnaya, Shivaya, etc. And lastly comes the word Namaha. In this process, we think of the all-pervading spirit, then the particular aspect of the deity who is the manifestation of the infinite spirit, and then we offer ourselves at the feet of the deity. Whenever we pronounce it, we must feel that we offer our mind, body, and soul at his feet. In an uncontrolled mind, a lot of energy is wasted by all sorts of thoughts which appear and disappear. These thoughts should be replaced by holy ones, holy thoughts. Vitarka bandhane pratipaksh bhavanam. ये पातंजलि योग सूत्र का 33वां सूत्र है. That is, evil thoughts should be counteracted by good thoughts. So, when you are disturbed or agitated, you may repeat the mantra or recite some holy verses of prayer. The deity should not be thought of as a two-dimensional picture. He is the very embodiment of consciousness and bliss, and the image in the mind should be a three-dimensional one. The Ishtam is full of bliss. Look at the divine smile on Sri Ramakrishna's face or on Sri Krishna's face. Think of them as living persons and feel his bliss. When you are under the sway of passions like anger, lust, etc., or when feeling miserable, repeat the Lord's name and watch what a tremendous change takes place. Constant remembrance of God is necessary, and japa is the best means for that. Concentrated japa is a great strain, but don't give it up on this account. Sit in a proper posture, relax the body and nerves by a few deep breaths, salute all gods and goddesses, pray for your own welfare and that of all others, and then try to rise to the level of the divine. The mind is simply deceiving you sometimes. Have a clear conception of the deity. What is your relationship to the deity? Is he a stranger, a god of anger and revenge, ever ready to punish? Then you cannot have a loving relationship with him. He is the soul of your soul, nearest and dearest one. He is very close to us. You already had 15 minutes. Quickly finish. Just few minutes more. The Ishta Devata should be perceived all the time. Swami Brahmananda had said, think of your Ishta Devata as blissful and conscious. Then your very nerves will react to the sound and form. Concentrated in the part of meditation, there are three things. First is meditation on Guru. Some find it easier to meditate on the Guru than on the Ishtam. Here, Reverend Maharaj says, after meditating on the Guru for some time, one should meditate on Ishtam as well. We must not cling to the personality of the Guru. Think of the spirit behind him. That is the true Guru. If we cling to his personality, we will only establish another worldly relationship.
I think that is why we have Thakur, we see as Guru Maharaj. That is what all the Gurus tell us during Mantra Diksha, that Thakur is the real Guru. Shri Ramakrishna had said to M that he was Chinmay. That is, Ramakrishna Dev was Chinmay, the very embodiment of consciousness, bliss and light. When you enter the shrine, think that he is seated there alive in full bliss. This is the type of dream or imagination that we should have. The power of imagination is great. First, get intellectually convinced of the truth, then imagine true dreams. There is another method for meditation. Enter the sanctuary of the heart and feel the consciousness there. The heart may not respond immediately, but apply all your power of concentration and then it will. Imagine that the infinite has taken the form of the deity in your heart. Imagine that you have put on a pure, luminous mental body and a physical body. Meditate on him for a while, repeating the mantra. You are also a part of the deity to whom you are worshipping. You are a soul, a part of the infinite self. Now merge your deity, the name and the form in the divine light that pervades your heart. Merge yourself, your name and form in that light. Now only the light remains, all pervading, blissful and effulgent. You are there as a speck of light, a witness, a point of consciousness in a vast expanse of light. With perfect purity and concentration, you may even lose awareness of your separate existence. That would be a great spiritual experience. Pranam. Okay. Now questions. First of all, Krishnendu Kundu, are you there? Kundu? संजय कुंडू ने ज्वाइन किया है क्या? Yes, Maharaj. आप करो पहले करो लास्ट मंथ का प्रश्न करो. दो प्रश्न थे तुम्हारे, एक माया के संबंध. So last week में महाराज मैंने ये सवाल पूछ नहीं पाया था. This is there is one sentence in meditation part 1 that this world comprises 3 gunas, Satya, Rajas and Tamas. So also does Maya. So this second portion I did not understand. Does it mean Maya also comprises of 3 gunas? How? Definitely. अरे बिना माया अगर 3 गुण नहीं हो गए तो संसार कैसे चलेगा? ब्रह्म में 3 गुण नहीं है, लेकिन the moment you come to Maya, it is 3 gunas, and these 3 gunas by making permutation and combination सारा जगत चलता है, सृष्टि होती है, और जब मर्ज होता है, प्रलय होता है, तो 3 गुण फिर माया के अंदर विलीन हो जाते हैं. माया जो है वो ब्रह्म की शक्ति है, तो ब्रह्म जो है उस शक्ति के द्वारा काम करता है, और ये शक्ति जो है त्रिगुणात्मिका है. ये गीता में है, शंकराचार्य बोलते हैं, सब जगह ये बोला है. So there should not be any doubt that Maya is त्रिगुणात्मिका. नहीं महाराज, वो तो ठीक है. Then you are telling that this world, the world itself is Maya. तो ये 2 सेंटेंस बोलने की क्या मतलब हुआ? Maya, I mean, okay, it is the world itself is the manifestation of Maya, you mentioned. Maya, yes महाराज. ठीक है. Okay, उसीलिए this is Maya and this is Maya. We don't every time speak out manifestation of Maya. तो जब हम माया बोलते हैं उसका मतलब यही है कि ये सब manifestation of Maya. Second Maharaj, about this meditation part 2. Meditation starts with imagination, which is also a vritti. Kalpana to vritti hai, though it may be a klishta vritti while we are doing meditation. However, imagination is not real. My question is,
when and how does it become a real experience? अच्छा, it is a very interesting question. एक साधक है, वो कृष्ण का भक्त है और वो कृष्ण की कल्पना करता है. तो एक नॉर्थ इंडियन भक्त है, एक साउथ इंडियन भक्त है और एक बंगाल का भक्त है. सब कृष्ण की कल्पना करते हैं. उनका जो कृष्ण है वो तीनों का कृष्ण बिल्कुल कल्पना में तीनों भिन्न है. तो Yes, यानी एक ना कृष्ण जो है वो अलग अलग प्रकार के जो भी हो, हम कोई जानते नहीं कृष्ण कैसे थे. तो everyone has his own imagination of Krishna and he continues. उसके बाद में साउथ इंडियन भक्त को जब कृष्ण का दर्शन होगा, इट इज अ रियलाइजेशन, ड्युअलिस्टिक रियलाइजेशन. याद रखो, ये द्वैत परक है, ड्युअलिस्टिक रियलाइजेशन. बट उसमें वो और नॉर्थ इंडियन भक्त का कृष्ण का रियलाइजेशन, दोनों में दे हैव रियलाइजिंग कृष्ण, बट देयर टू कृष्णस आर डिफरेंट. ठीक है ना? That is because of imagination. But they are very, very important. You have attained something. Your God realization, dualistic God realization has been done. Through realization, through imagination. Okay, but whatever, that real imagination will go only in Nirvikalpa Samadhi when the mind will go away. As long as mind is there, you will remain always in imagination. Now, point is, आप बोलते हैं कि आंख खोल के देख लिए, हमारे सामने टेबल है, ये तो इमेजिनेशन नहीं है. लेकिन आप देख तो रहे हैं, माइंड से ही देख रहे हैं. Yes, ma'am. And here that is also because you have got 5 senses. Yes, ma'am. अच्छा, अगर आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंस मिल जाए या आपको कंप्यूटराइज्ड सेंस मिल जाए जिसमें आप मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स भी देख सको, तो आपको ये टेबल नहीं दिखेगी और कुछ दिखेगा. देन व्हाट इज ट्रूथ? यानी यदि सब कुछ हमारे सेंसेस के ऊपर रहते हैं, एक जो 3 सेंस वाला एनिमल है उसके लिए वर्ल्ड डिफरेंट है और 5 सेंस वाले एनिमल के लिए वर्ल्ड डिफरेंट है. और उसके पीछे जो है माइंड है, एक कुत्ता है, 5 सेंसेस हैं उसके, लेकिन उसके पीछे उसका माइंड जो है वो बिल्कुल भिन्न है. हमारा माइंड भिन्न है. अच्छा, मेरा माइंड और एक बच्चे का माइंड, उसमें भिन्नता है. मेरा माइंड और एक साइंटिस्ट का माइंड, उसमें भिन्नता है. तो जो भी आपको रियलिटी, जिसको आप रियलिटी बोल रहे हो, साइंटिस्ट जो रियलिटी बोल रहे हो, वो भक्त जो है और ये भक्त जो साधक है वो बोलता है कि तुम्हारी रियलिटी और मेरी रियलिटी में बहुत फर्क है. क्यों? तुम्हारा माइंड डिफरेंट है, मेरा माइंड डिफरेंट है. तो पॉइंट इज, तुम जिसको बोलते हो कि व्हाट इज ट्रूथ, एवरीथिंग इज इमेजिनेशन As per the mind. Because we are already perceiving only through mind, and mind is different of individuals. तो हमारे शास्त्र में बड़ा मजेदार कहते हैं कि एक नारी है, तो एक नारी को एक कोई माँ देखता है, एक कोई कामनी देखता है, एक उसको और कुछ प्रकार से देखता है. एक ही नारी को 5 प्रकार से लोग देखते हैं. रियली क्या है बताओ? सारा जगत जो है हम अपने मन से देखते हैं, और मन से देखना मतलब क्या है? व्हाट इज रियलिटी देन? पॉइंट इज, आपने बोला है कि इमेजिनेशन ही है. रियलिटी कहाँ है? जो रियलिटी है निर्विकल्प समाधि के टाइम ही होगी, जब माइंड चला जाएगा. अच्छा. और जब तक नहीं जाता है तब तक हम इमेजिनेशन के फील्ड में ही रहते हैं. जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, भगवान दर्शन हुआ, काली का दर्शन ठाकुर को हुआ, रामलाला का दर्शन हुआ, ये सब के सब मन के स्तर पर होते हैं. एक तरीके से इमेजिनेशन ही. हाँ बस, लेकिन बट दे आर वेरी ग्रेट. यानी वो जीवन का साकी सार्थकता हो जाती है उसमें. Yes, ma'am. विचार को आप ध्यान में रखिए और इस प्रकार करिए. बट दिस क्वेश्चन इज गुड इन दिस सेंस, फिलोसॉफिकल सेंस है
that unless you go beyond imagination, you continue to remain in duality. और जब तक निर्विकल्प समाधि नहीं होगी तब तक हम एक प्रकार से सभी इमेजिनेशन ही है। हमारे सामने जो टेबल है वो भी एक प्रकार से इमेजिनेशन। We have projected our mind on it and we have prepared. ठीक है? Yes, Maharaj. Okay? Yes. अच्छा, सुदीप मजुमदार, सुबीर मजुमदार। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई आओ। हाँ, my first question महाराज जी, during meditation, when we meditate on the luminous form, our mind keeps bringing back the benign benevolent face of our Ishta Devata. Should one then forcefully try to concentrate on the luminous form or enjoy our meditation at the level of the Ishta Devata with form? अच्छा, इनका ये प्रश्न है कि हमको कहा जाता है कि जब ध्यान करो तो अपने इष्ट देवता को ये समझो कि वो ज्योतिर्मय रूप है। लेकिन हम जब ध्यान करते हैं तो हमको लगता है कि वो आनंदमय है और करुणामय है, ऐसा आने लग जाता है। तब क्या करें? यही है ना तुम्हारा प्रश्न? हाँ जी महाराज जी। हाँ, अब देखिए, जो ल्यूमिनस फॉर्म बोलते हैं उसके पीछे उद्देश्य ये है कि आप ये समझो कि जो आपके इष्ट हैं वो जीवंत जागृत हैं। दैट इज द आइडिया। यानी लुमिनोसिटी का अर्थ है चैतन्य से। हम ये चैतन्य नहीं कर पाते इसलिए हम उसको ल्यूमिनोसिटी करते हैं। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि कॉन्शियस फीलिंग होना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ल्यूमिनोसिटी के बदले अगर इष्ट का आपको ये ध्यान होता है कि इष्ट हैं, वे प्रेममय हैं, करुणामय हैं और आनंदमय हैं और वे तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो उसको अवश्य बनाए रखिए। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी महाराज जी। और उसके पीछे जो प्रकाश का जो पॉइंट है वो है कॉन्शियसनेस का, जिसकी चर्चा अभी और मेडिटेशन के भी जो डिस्कशन होंगे, बातचीत, क्वेश्चंस होंगे, उसमें और होगा। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया? जी महाराज जी। इफ यू कैन सी द बिनाइन फॉर्म, प्रेममय और करुणामय, दयामय है, तो उसी को बनाए रखिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइट। जी जी महाराज, बिल्कुल क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन महाराज जी, sometimes during meditation one becomes suddenly aware that the breath has been withheld automatically. So why does this happen and is it significant? वो आप देखेंगे कई जगह पर वर्णन है कि कोई आदमी जब निशाना लगाता रहता है ना, जी जी जी, कॉन्सेंट्रेट, तीर चलाने वाला है, उसको निशाना लगाने के लिए बैठा है और गहरा कंसंट्रेशन हो जाता है, तब क्या होता है? उसका सांस रुक जाता है। तो ये चीजें अगर गहरे ध्यान में सांस रुक जाता है तो अच्छा है, उसमें कोई बात नहीं है। उसके ऊपर महत्व मत दीजिए, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, वो होने दीजिए, कोई बात नहीं। यानी कहते हैं कि ध्यान में गहरा ध्यान होने पर कुंभक हो जाता है। तो कुंभक करना नहीं पड़ता आपको, अपने आप हो गया। तो nothing bad in it, but don't worry about it. Okay Maharaj. Maharaj, third question, in the article Swami Yatishwarananda says the mantra becomes alive or conscious. What is meant by that? अच्छा, इसको मैं दूसरे प्रकार से समझाता हूँ। सपोज आप एक सड़क पे जा रहे हैं या कोई भी है और किसी ने आपसे कहा कि आप राम का नाम का जप कीजिए। अच्छा, अब इसके बदले कोई व्यक्ति, गुरु या एक साधक जिसने वर्षों का नाम जप किया था, वो अगर आपको कहे कि राम के नाम का जप करिए, तो उसने भी नाम का दिया है आपको और एक चलते फिरते आदमी ने भी नाम दिया है। इन दो नामों में फर्क होगा कि नहीं? जी बिल्कुल होगा महाराज। बिल्कुल होगा ना? अब आपको मालूम है कि ये कबीरदास जी गंगा घाट पे जा रहे थे और उनका वहां नहीं, कबीर वहां पे गंगा के घाट पे लेटे हुए थे और रामानंद जी ना कौन थे? उनके गुरु। हाँ जी, रामानंद जी ना।
हाँ रामानंद, रामदास महाराज, रामानंद महाराज। रामानंद राय। हाँ, रामानंद वहां जा रहे थे, उन्होंने पैर छू गया और बोल दिया हे राम राम, और कबीर को मंत्र मिल गया। तो किसके मुंह से मिला है? जिन्होंने वर्षों तक राम के नाम का जप किया। तब ये मानते हैं कि नाम का जप करने से, अगर लाख बार नाम का जप करने से तो जप मंत्र जो है वो चैतन्य हो जाता है। ये स्वीकार कर लिया कि नहीं किया? जी जी। सुबीर, हाँ महाराज जी। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल महाराज जी। हाँ बिल्कुल। ठीक है मैं तो उसमें 1,00,000, यतीश्वरन जी कहते हैं 1,00,000 बार करने से वो चैतन्य हो जाता है। वो मंत्र जो है उसमें एक पावर आ जाता है भाई। जी जी मैं समझ गया। हाँ, वो पावर आ जाता है। बिल्कुल। ठीक। अच्छा चलो। The fourth question is, it is easier to meditate on form than on attributes. मतलब रूप ध्यान गुण ध्यान से आसान लगता है। The oneness or concentrated meditation which is spoken of in Patanjali Yoga Sutra is on the form or the attributes? एनी पतंजलि वहां पे कई प्रकार के मंत्र के वो प्रत्यय यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन बताते हैं। जी। और मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन आर वेरी सटल and very difficult even philosophically to understand. तो वहां पे जो बात कर रहे हैं पतंजलि, वो जो है मंत्र का ध्यान जब आप किसी भी कर चाहिए, वहां पे वो फॉर्म के लिए फिजिकल फॉर्म की बात नहीं होती, सटल फॉर्म की बात होती है। तो आप उसको सटल फॉर्म लीजिए, आइडिया लीजिए। प्रत्यय का अर्थ ही होता है भगवान का तद जपः तद अर्थ भावनम। जी। तो ओम जो है वो ईश्वर का एक प्रतीक है ना, तस्य वाचकः प्रणः। और ईश्वर के उन्होंने 4 डेफिनेशन बता दी और उसके बाद में कहा है उसके अर्थ का चिंतन करना है। तो ओम का जब पर ध्यान करना है यानी उसके अर्थ का चिंतन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां कहीं भी पर्टिकुलरली पतंजलि में तो कोई रूप का ध्यान का कोई डेफिनेट वर्णन नहीं है, वहां तो फिलोसॉफिकल आइडिया पे ध्यान करने का ज्यादा महत्व है। तो अर्थ भावनम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ठीक है महाराज जी। अच्छा। And one more question, Maharaj. There are times when japa and meditation can appear mechanical, especially when done in the middle of the day. So how to infuse love and enthusiasm in such a state? तो ऐसा है कि उसके पहले थोड़ा सा ध्यान में जब आफ्टरनून में बैठोगे और ऐसे समय बैठोगे, किसी ने और कहा था कि शाम को जब ध्यान करते हैं तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसमें 10-15 मिनट तक आप कॉन्सेंट्रेटेड कुछ पढ़ लो, या पढ़ लो, या किसी किताब में से मेडिटेशन का ये आर्टिकल है, इसमें से 2 पैराग्राफ आप किताब में अपनी किताब के अंदर उसको कॉपी में या डायरी में उसको लिख डालो, तो उसमें 10 मिनट 15 मिनट जो है वो मन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। उसके बाद ध्यान करो, आप देखेंगे कि वो मैकेनिकल नहीं हो। जी महाराज जी। ठीक है महाराज जी। महाराज एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरे मदर ने अभी मुझे बोला कि आप पूछ लेना। वो कहती है कि जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो इट इज वेरी इजीली डिस्टर्ब्ड बाय एक्सटर्नल साउंड, इसके लिए क्या किया जाए? एक्सटर्नल साउंड पहले नहीं डिस्टर्ब होते थे, ऐसा है कि थोड़ा सा साउंड यदि है तो आप उसको माँ को बोलो कि जब को बोलते बोलते करे जरा सा साउंड, अच्छा, आवाज करके मुंह से बोल के करे। अच्छा। यानी मुंह से आवाज निकले, एकांत में हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सुनेगा नहीं। यानी जब को भी लाउड करना, क्योंकि साउंड से डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, वो सप्रेस कर देगा। और दूसरा एग्जाम्पल दूसरा है कि आप मंत्र को मन ही मन सुनिए। मैं कई बार इस बार को कहता हूँ कि मंत्र पे एकाग्र करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मन में सुनिए। कैसे सुने? यानी मैं जा रहा हूँ, ये आपका एक सेंटेंस है, तो मन ही मन आप बोलिए मैं जा रहा हूँ और मन ही मन उसको सुनिए।
उसी प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मन ही मन आपने सुना, बोला, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसको मन ही मन सुना, अंदर के कान से सुना। जी तो ये महाराज। दो टेक्निक है, एक तो ये है कि बाहर से कान से सुनना, यानी उसमें जोर से बोलना पड़ेगा, और नहीं तो अंदर के कान से सुनना, जो आप मन ही मन कर सकते। ठीक है महाराज। ठीक है, हाँ महाराज, प्रणाम महाराज जी, दैट्स ऑल। अच्छा दिलीप भाई। हाँ भाई, दिलीप भाई जी प्रणाम महाराज, प्रणाम। आइए 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 आइए, आप अपने अपने तीर चलाइए, तीर चलाइए। वो महाराज वहां पे है ना, मैत्रेयी, मैत्रेयी जो है वो प्रश्न करती है याज्ञवल्क्य से, वो कहती है कि मैं 2 तीर चलाने वाली हूँ, प्रश्न को वो तीर देखती बोलती है। तो भाई दिलीप भाई आपके तीर चलाइए जरा। जी महाराज प्रणाम। हाँ। It may need a firm handling or a little force to continue with the practices. What type of a force required? This is a physical force or mental force? अच्छा देखिए, पहले ये समझ लीजिए फर्म हैंडलिंग का क्या अर्थ है। ये बच्चा जो है वो उछल कूद करता रहता है ना दिन भर, जी तो माँ उसको डांट के रखती है, पकड़ के रखती है, संभाल के रखती है, कभी कभी चांटा लगा देती है, कभी कान पकड़ती है, और कभी बोलती है जी। कि मैं तेरे को खाने को नहीं दूंगी, मिठाई नहीं दूंगी। ये माँ के ढंग है। हमारा मन भी बच्चे जैसा है कि नहीं? बिल्कुल जी। मंकी जैसा है या बच्चे जैसा है हमारा मन? हमेशा इधर उधर भागता रहता है। इसलिए क्या करना है उसको, उसको करना है, उसको क्या करोगे आप, अगर आपको दिन भर मन नहीं लग रहा है तो शाम को आप खाना मत खाइए, पनिशमेंट की दीजिए उसको। जी जो मन चाहता है, मिठाई चाहता है, टीवी देखना चाहता है, उसको नहीं दीजिए। यानी अपने आप पर थोड़ा सा हमको नियंत्रण करना पड़ेगा। गुरु होते तो गुरु के पास जाते तो गुरु उसको डांटते, डंडा मारते, हम इतना तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन ऐसी चीज जिससे मन थोड़ा सा समझे। यानी अब जैसे हम क्या किए, हम बचपन में थे, मैंने बताया, सुना भी दिया है शायद, बचपन में थे तो हम जब गलती गड़बड़ करते थे तो हमको कमरे में बंद कर देते। तो एक दिन क्या किया, मैं खुद गया माँ के पास कि माँ मैंने गलती की है, मैं अब कमरे में बंद हो जाता हूँ। तो ये समझ लीजिए कि हमारे गुरु हमारे पास यदि होंगे तो वो कैसे हमको डील करेंगे। वो हमको कहेंगे कि तुम 1000 जप और करो। आपका मन इधर उधर भाग रहा था, उसके पनिशमेंट के लिए 1000 5000 जप करना पड़ेगा। ये 10,000 जप करना, 5000 जप करना, ये जो है ये अच्छे पनिशमेंट। तो इसको ये फॉर्म हैंडलिंग का अर्थ ये हुआ। सेकंड, कहाँ दिलीप भाई तो दिख ही नहीं रहे हैं। राइट जी महाराज। हाँ यस जी हाँ बोलिए। yes Maharaj, my second question, you do not put your whole mind in the work you do. What is the meaning of it? संजय जी आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ महाराज तक नहीं फोन। आपका ये कहना है कि हाँ, you do not find whole work go to in work what you do, ये कैसे होता है ना, यही तो। हाँ, you do not put all your। आपको हम एग्जाम्पल देते हैं स्वामी विवेकानंद का। वो जो भी करते थे उसमें पूरा मन लगा देते थे, इसलिए एक बार किताब पढ़ी तो याद हो जाती थी। हम 10 बार पढ़ते हैं तो भी याद नहीं होती, हमारा कंसंट्रेशन नहीं है पूरा। अच्छा, फिर स्वामी विवेकानंद खेलने गए, उन्होंने गोल्फ खेला था, तो उनको बॉल जो है वो हर शॉट में 12 शॉट उन्होंने गोल्फ में डाल दिए। यानी जो 12 में से अगर एक डाले तो बहुत अच्छा माना जाएगा। स्वामी जी ने 12 शॉट लगाए और वो सीधे अंदर चले गए। कितनी जगह पे इस प्रकार का है,
ध्यान में बैठे हैं, सारे शरीर पे मच्छर भर गए हैं, उनको पता नहीं। यानी अपने मन को उन्होंने पूरी तरह, पूरा होल माइंड जिसमें भी लगाते थे, होल माइंड लगाते थे। हम लोगों का, हम किसी में भी पूरा माइंड नहीं लगाते हैं। खेलने में सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, सब में हमारा आधा माइंड है। तो हम प्रवचन जो देते हैं तो प्रवचन तो देते हैं, और उसके साथ ये भी सोचते रहते हैं कि लोगों को कैसा लगा। फलाना व्यक्ति जो है वो 15 आदमी बैठे हुए हैं, हमको पता चल जाता है कि 2 आदमी जो हैं वो कंसंट्रेट करके सुन नहीं रहे हैं, 2 आदमी सो रहे हैं। ये कैसे मालूम पड़ा हमको? हमने पूरा माइंड हमारे ध्यान लेक्चर में नहीं लगाया, इसलिए हमको सारी चीज पता चल जाती है, बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। ये अभी कोई है यहाँ पे अभी लेक्चर सुन रहे हैं, और उसके साथ में एक कपड़े को सिलाई भी चल रही है। मतलब ये है कि ये लेक्चर भी सुनना जो है वो पूरे मन से नहीं हो रहा। तो भाई ठाकुर के लिए महाराज ज्योति वही कर रही है, के लिए है तो भी, लेकिन सुना तो हमारा दृष्टांत तो ठीक है ना, दृष्टांत तो ठीक है। तो दिलीप भाई ने जो बोला है कि हम पूरे मन से नहीं करते हैं, यही बात। अरे वो ठाकुर के लिए है, वो भी तो पूरे मन से नहीं हुआ। तुम्हारा आधा मन लेक्चर में था और आधा मन फूल में था। तुम्हारी भक्ति कैसी थी वहां पे? पूरा करना है तो पूरे मन से करते, उसमें ठाकुर एक एक फूल के साथ भगवान का, ठाकुर का ध्यान होता। ये नहीं होता महाराज। इसके लिए आगे आप बताया गया है कि जप इज द सॉल्यूशन। हाँ, जप से क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेटेड जप करना पड़ेगा उसके साथ में। ऐसा है कि छोटा छोटा जप से नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड जप करना पड़ेगा। और उसमें भी जप करोगे तो पूरा मन लगा के जप करोगे, मन इधर उधर भागेगा नहीं। तो वो इसलिए कि जप में क्या है, एक ही चीज चल रही है ना, राम 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 राम। और अगर मन इधर उधर ब्रेक करेगा तो राम हो जाएगा, दूसरे नाम पे कृष्ण आएगा, तीसरे नाम पे दुकान आ जाएगी, चौथे में यह आएगा। हमारा मन जो है वो उसमें 10-20 चीजें एक साथ आती रहती हैं। इसीलिए कहा गया है कॉन्सेंट्रेटेड जप करने से राम 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 राम, एक राम तो आया ना, धीरे धीरे वो एकाग्र होगा। जी चलो। yes. Harmony is established in the mind and thereby the body too will improve. फिजिकल बॉडी, हाँ, it's a physical body will. हाँ, फिजिकल बॉडी। जी, भगवान का नाम जो जब लेता है ना निरंतर, तो उसको बीमारी भी कम होती है। हम देखो ना, हम बूढ़े हो गए हैं, पर बुढ़ापा आ ही नहीं रहा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। हो गया? जी जी महाराज। yes. What is the proper way to repeat his name? His name. भगवान के नाम, भगवान के नाम की प्रॉपर वे क्या है? हाँ, श्री रामकृष्ण ने बहुत सुंदर बताया। जी। निर्जने, जिस लोग पढ़ते हैं बंगाली में, वो बंगाली में है, हिंदी में अनुवाद है। निर्जन में, निवेदिता बोलो तो। निर्जने मोने बोने और कोने। दूर, 4 चीज है। चार, निर्जने मोने बोने और कोने। निर्जने निशब्दे एक मने अनुराग पूर्वक। हे भगवान, वचनामृत को पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। प्रथम चैप्टर में है, शुरू में ईश्वर में मन कैसे लगे, तो भगवान ठाकुर क्या बोलते हैं? निर्जन में, निर्जन में, सब पब्लिक में नहीं, निर्जन में निशब्दे, बिना शब्द के मुंह से उच्चारण करोगे लेकिन शब्द नहीं निकलेगा। निर्जने निशब्दे, एक मन से, यानी कॉन्सेंट्रेटेड, मन इधर उधर नहीं जावे। और चौथा है अनुराग पूर्वक। इतना करते हुए भी ठाकुर कहते हैं कि अनुराग नहीं होगा तो नहीं होगा। अनुराग पूर्वक, भगवान के प्रति या मंत्र के प्रति अनुराग पूर्वक। ये 4 कंडीशन स्वामी जी भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं। और पातंजल योग सूत्र में कहते हैं तद जपः तद अर्थ भावनम। इसके साथ 5वां जोड़ दीजिए, उसके अर्थ का चिंतन करना है।
राम 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 कर रहे हैं और राम का अर्थ नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं। ठीक, चलो हो गया। नहीं महाराज, नेक्स्ट हाउ टू भाई हुआ कॉल। कि नहीं, प्रश्न उत्तर हुआ कि नहीं? बराबर है महाराज जी। हाँ पर जिस महाराज इसके अंदर मेरा ये पूछना था कि भगवान का नाम लेते हैं और उस समय उसका चित्र भी सामने आना चाहिए और उसका पूरा वर्णन भी दिखना चाहिए, ये आपका कहना? हाँ, चित्त जपः तद अर्थ भावनम। तो अर्थ क्या रहेगा? उसका अर्थ क्या है जप का? हाँ, यदि आज मेरा मंत्र बताइए, आपका नाम मंत्र क्या है? वासुदेव, वासुदेव है तो वासुदेव का अर्थ नहीं जानते क्या? नहीं तो यानी कृष्ण समझे। वासुदेव जो नाम है तो वासुदेव यानी क्या? वासुदेव यानी श्री कृष्ण जी कि नहीं? हाँ बराबर। तो वो श्री कृष्ण का भी रूप आपके मन में आना चाहिए जप के साथ में जी। ओम नम और वासुदेवाय नमः, और उसमें भक्ति का भाव आना चाहिए, प्रणति का भाव आना चाहिए। ये सब नहीं होगा तो मंत्र जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा। बीट 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 करोगे और कुछ नहीं होगा। बराबर जी जी। अवश्य कुछ तो लाभ होगा, यानी राम 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 रुपया के बदले तुम राम राम कर रहे हो, इतना फायदा हो गया। तो ये उसके साथ में उसका ये एक रूप का ध्यान, पतंजलि योग सूत्र तो बोलते ही है वो तज्जपः तद अर्थ भावनम, अर्थ तेरा समझ लीजिए, उसके बाद में करिए। ये महाराज नेक्स्ट बोलिए आगे। हाउ टू कॉल ऑन हिम सिंसियरली इवन। क्या हुआ नहीं तुम्हारा पिछली बार प्रश्न? पिछला नहीं ये तो अभी का है महाराज। हाउ टू कॉल on him sincerely even once, because it has a power of awakening, creating a spiritual wave. So also how to identify your own consciousness with his infinite consciousness. नहीं, वो तो उसी के दो भाग होगा। ये जो प्रश्न है ना, हाँ इसके दो भाग है जी महाराज। हाँ वो ये पहले तो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस की बात सेकंड पार्ट में आई जी, और पहला पार्ट है कि उसमें एक बार भी भगवान को पुकारो पूरे मन से, है ना जी? हाँ है ना जी महाराज। तो तुमने एक वो भजन सुना होगा जी, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, मालूम है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रसिद्ध भजन है ये, सूरदास का है। हाँ। तो कहते हैं उसमें ये कहते हैं कि जब लग वो द्रौपदी जब तक अपना कपड़ा खींचती पकड़ती रही तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सब कुछ छोड़ दिया, निर्बल होए बलराम पुकारे, वो तो उसमें गजराज का है। गजराज को जब मगर ने पकड़ा तब उसने जब निर्बल होकर पुकारा तब आधे आए नाम, यानी नाम कृष्ण पूरा पुकारा नहीं, क्री केवल पुकारा और भगवान आ गए। यानी तुम बोल रहे हो ना, कॉल ऑन हिम इवन वंस। यस, निर्बल होकर पूरे मन से एक बार भगवान को पुकारो ना जी। 1 लाख जप किया लेकिन मन इधर उधर भाग रहा है, भाव नहीं है, तो क्या फायदा? तो ये क्वेश्चन का आपको उत्तर मिल गया जी। हाँ भाई पहले पार्ट का। हाँ ये तो मिल गया बराबर। अब महाराज जो एक उदाहरण इसमें दिया गया था कि द्रौपदी ने बहुत कोशिश की थी अपने आप को बचाने की, लेकिन वो नहीं बच पाई और जब उसने कृष्ण को याद किया तो सब कुछ हुआ। तो क्या मनुष्य की एक मानसिकता ये बनी रहती है कि हम अपने अनुसार ही काम करेंगे, हम खुद कर लेंगे? तो भगवान भी क्या है, जानबूझ के कराते हैं जी। यानी ऐसी पूर्ण निर्भरता भगवान पे जी, ये दुर्लभ है। वो गिरीश चंद्र घोष आई थी कृष्ण से, जब श्री राम कृष्ण ने कहा कि सब बकलमा दे दो, अपना सब पावर मुझे दे दो, उसके बाद उनमें ये सिचुएशन आई थी, सामने गिलास था उसको उठा नहीं पा रहे थे,
ये भगवान की परमिशन नहीं मिली है। पूर्ण रूप से शरणागत यदि कोई व्यक्ति हो जावे तो भगवान अपना भार लेते हैं। तो यहाँ पर ये जप की बात नहीं है, ये शरणागति, पूर्ण शरणागति, ये मानसिक स्थिति की बात है। जी उस जप के साथ में हमारी मानसिक स्थिति क्या है? यस हम लोग क्या है कि अपने ऊपर निर्भर करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, तो ठीक है, फिर जब भी तुम करो, जब लगेगा कि भाई हमारे बस का नहीं है, हम में ताकत नहीं है, तब वो मंत्र जो है वो दूसरे प्रकार का। जी तो ये एक दूसरा प्रश्न हो जाता है, थोड़ा सा भिन्न हो जाता है हाँ कि जब द्रौपदी बिल्कुल निर्बल हो गई, दोनों हाथ उठा दिए, तब भगवान आए। तो ये निर्बलता शरणागति का बात है, यहाँ पर जप की बात नहीं। बराबर जी महाराज राइट जी महाराज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड एंटर द सेंचुरी ऑफ द हार्ट नहीं 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 नहीं, ये इस प्रश्न का बी पार्ट हुआ नहीं। नहीं हाँ so how to identify your own consciousness which is infinite consciousness? ऐसा है कि आत्मा अपने कॉन्शियसनेस को इन्फिनिट कॉन्शियसनेस से कैसे जोड़ना। ध्यान के समय ये सोचो कि मेरे चारों ओर परमात्मा है और मैं परमात्मा के बीच में बैठा हुआ हूँ। विचार के द्वारा, ये हुआ ध्यान के द्वारा, ओके जी। दूसरा हुआ विचार के द्वारा कि मैं दास हूँ और प्रभु भगवान मेरे प्रभु हैं। तो एक तो भावना के द्वारा वी आइडेंटिफाई अवरसेल्व्स विद भगवान, हम दास हो जाते हैं और भगवान जो है वो हमारे स्वामी हो जाते हैं, ये हो जावे। या फिर ज्ञान के द्वारा सोचो कि सर्वत्र जो है वो चैतन्य है, जैसे आकाश है और उसके भीतर मैं बैठा हूँ, उस प्रकार से सर्वत्र परमात्मा है, उसके भीतर मैं बैठा हूँ। तो या तो ध्यान के द्वारा यानी या भक्ति के द्वारा यानी विचार के भावना के द्वारा या फिर ध्यान के द्वारा आइडेंटिफाई योर कॉन्शियसनेस विद द इन्फिनिट। हो गया? हाँ, तो महाराज भावना को लेके भी जप कर सकते हैं, हैं? भावना मन में प्रतिष्ठित करने के बाद जप कर सकते हैं हम। अरे वो तो करना ही है, वो दोनों करो ना, उसमें क्या, उससे भिन्नता क्या है? वो भावना जप के द्वारा ही भावना आएगी। विचार के द्वारा आप करोगे प्रभु मैं दास हूँ और तुम स्वामी हो, और उसके साथ में जप करो जी। जप का अर्थ ही है कि मैं स्वामी और प्रभु में तुम दास हो, ये भाव हो जाएगा जी जी। जब जो है उसी विचार का कंडेंस्ड फॉर्म है जब। जी। दोनों भाव को कंडेंस्ड फॉर्म हो जाता है जब, ये याद जी जी। अब नेक्स्ट सवाल, द मेथड एंटर द सेंचुरी ऑफ द हार्ट एंड फील द कॉन्शियसनेस देयर, द हार्ट may not respond immediately but apply all your power of concentration and then it will. सुनो, ये प्रश्न इन्होंने भी पूछा है, विभाभा हो कि नहीं? जी स्वामी जी। तुम लोग का भी यही प्रश्न है ना? जी स्वामी जी। ऐसा है कि इसमें वर्णन है दो प्रकार से। ऐसा है कि ये सोचो, यानी ध्यान की ये प्रक्रिया है, ये बहुत श्रेष्ठ ध्यान है। अपने हृदय में भगवान का ध्यान करने की बात करते हैं ना हम लोग। तो हृदय में क्या है कि इमेजिन, यानी हमारा हृदय जो एनाटॉमिकल हृदय नहीं है, जो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल हृदय नहीं है, ये हमने पेट का जो पोर्शन है उसके ऊपर का पोर्शन, यानी सीने पे हम लोग जो हाथ रखते हैं ना, अरे मेरे हृदय में जब कुछ भावना हुई हमारे दिल में तो हमने सीने के ऊपर हाथ रखा, तो वो हृदय। तो उसके भीतर है मानो स्पेस है ना, हमारे हृदय में, फेफड़े में, हमारे लंग्स के अंदर, हमारे सीने में स्पेस है। तो वो स्पेस जो है वो उसको कहते हैं हृदय, हृदय आकाश। ओके, काश या आकाश मीन्स स्पेस। तो क्या करो, इमेजिन करो कि वह लाइट से पूर्ण है, कॉन्शियसनेस। यू नो, जब कॉन्शियसनेस हम बोलेंगे तो दिलीप भाई बोलेंगे ये कॉन्शियसनेस क्या भला है, बार बार बोलेंगे ये कॉन्शियसनेस क्या है। अरे भाई, एक टेबल जो है वो कॉन्शियस नहीं है, मैं कॉन्शियस हूँ, उसमें अंतर है। तो ये कॉन्शियसनेस, उसी प्रकार से सोचो कि इसी प्रकार की कॉन्शियसनेस मेरे हृदय में है।
अगर नहीं कर सको तो सोचो कि वहां पे प्रकाश, लाइट, ओके। हमारा सीना जो है प्रकाश से भरा हुआ, ये प्रकाश ने क्या किया है कि इट हैज टेकन द फॉर्म, उसने हमारे इष्ट का एक रूप ले लिया। सारा हमारे हृदय में हो रहा है, याद रखो। हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे हृदय में स्पेस है, यानी सीने में एक आकाश है, स्पेस है जो लाइट से भरी हुई है या कॉन्शियसनेस से भरी हुई है। उस कॉन्शियसनेस ने मेरे इष्ट का रूप ले लिया है और उसी ने मेरा भी रूप ले लिया। और उसके बाद में वहीं पे इसका ध्यान करो, मैं उस कॉन्शियसनेस का ध्यान कर रहा हूँ, और उसके बाद में उसको वापस मर्ज कर दो, सबको एक में मिला दो, वहां पे केवल आकाश लाइट कर दो। नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट मेडिटेशन, बट तुम्हारा जो प्रश्न है उसका यही मतलब है कि यानी मेडिटेशन इन द हार्ट जो है वो यतीश्वरानंद जी उसको बहुत रिकमेंड करते हैं, मेडिटेट इन द हार्ट जी। अच्छा, ये नहीं होवे तो ये इमेजिन करो कि आपके स्पेस जो बताई है उसके अंदर एक लोटस, एक कमल है ऊपर खिला हुआ। अब और भी कल्पना कर देते हैं कि वो 12 पेटल, 12 पखड़ी वाला है। यानी क्या है, हमारा मन इधर उधर भागता है तो हमने एक कमल बता दिया, उसको लाल रंग का बना दिया, उसको 12 पखड़ी वाला बना दिया। उसके बाद में आपके जो इष्ट देवता हैं उसको राम है, कृष्ण है, राम कृष्ण है, उनके उसके ऊपर लोटस के ऊपर बिठा दी। अब उसका ध्यान करो और वो प्रकाश से पूर्ण है ऐसा ध्यान करो। तो ये हुआ हृदय में ध्यान। तो आप आकाश का ध्यान कर सकते हो, चैतन्य का ध्यान कर सकते हो, लाइट का ध्यान कर सकते हो, उसमें इष्ट देवता को और अपने को ध्यान कर सकते हो, सबको मर्ज कर सकते हो। ये 2-3 वर्णन इस आर्टिकल में ही किए गए हैं। तो you take up everything, anything, meditate in the heart, and within the heart meditate on the pure consciousness, and inside that your Ishta Devata, or inside you also, and finally merge everything into pure consciousness. Okay? ये हुआ meditation in the heart. ठीक है? Yes. So विभा तुम लोग का भी पॉइंट हो गया? जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। Yes. Maharaj, next question है, how a guru can be a disciple? यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं, वो आप ठीक से पढ़ो, नहीं पढ़ो फिर से उसको जी। वो सेंटेंस आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। जी, मैं ये पढ़ रहा हूँ। In one aspect, he is the guru. He means what? In another, सुनो, he means what? he means God. God in one way, in one aspect is guru. He is guru, and in another aspect, he is the disciple. यानी गॉड जो है एक एस्पेक्ट में वो हो गया है अपने डॉक्टर बोलते हैं ना, वैद्य नारायण बोलते हैं ना, तो वैद्य है वो नारायण बना दिया हमने, और दूसरे एस्पेक्ट में रोगी नारायण बना दिया। यस। तो गुरु अपन डॉक्टर को भी हम नारायण बना दिया और रोगी को भी नारायण बना दिया। हाँ। तो जिसकी आप सेवा करें, माता पिता बच्चे को अपना भगवान समझ के उसकी सेवा करें, और बच्चा माता पिता को भगवान समझ के उनको प्रणाम करे। ठीक है? बराबर हो गया? ठीक है, दोनों हो गया। तो उसी प्रकार से गुरु जो है वो भक्त जो भगवान होता है, जो शिष्य होता है उसको वो भगवान समझ के उसको उपदेश देता है, और जो भक्त है और जो शिष्य है वो गुरु को उसकी सेवा करेगा ये समझ के कि वो भगवान। तो इन वन एस्पेक्ट गॉड इज गुरु, एंड इन अनदर एस्पेक्ट गॉड इज डिसाइपल। ठीक है जी महाराज, राइट जी। Yes, next question is consciousness in all and everywhere, that is all in jad, lifeless things like stone, table, gold, electric things, etc. तो महाराज इन सब में कॉन्शियसनेस है।
ये कैसे, ये तो जड़ चीज है। टेबल में कॉन्शियसनेस कहाँ से आएगी? अभी आपने बताया था। अरे 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 अरे, छोटा बच्चा जो है ना, हाँ, वो कार को जड़ कॉन्शियस देखता है कि नहीं देखता? तुमने देखा कि नहीं? बिल्कुल छोटे बच्चे, हाँ। वो छोटे बच्चे जो हैं जड़ चीजों को भी, वो हाँ खिलौनों के भी वो कॉन्शियस देखता है, जी, वो कार को कॉन्शियस देखता है, हाँ हाँ जो साइकिल को कॉन्शियस देखता है। जी देखोगे तुम, बच्चा बिल्कुल इस प्रकार का सोचता है, जी, बिल्कुल इस प्रकार का सोचता है बच्चा, छोटा बच्चा। और हाँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं चाइल्ड इज करेक्ट। चाइल्ड इज करेक्ट। अपने सुनिए सुनिए, हमारा लक्ष्य है जो जड़ पदार्थ है उसके अंदर भी चैतन्य को देखना, सर्वत्र चैतन्य है। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हाउ कैन इट पॉसिबल? अरे एक्चुअली जो संत होते हैं भगवान को सर्वत्र देखते हैं, वो टेबल कुर्सी उसके अंदर, सबके अंदर भगवान को देखते हैं, और यही लक्ष्य भी है। सो हाउ कैन इट बी? एन बिकॉज योर माइंड इज फुलिश। हमारा माइंड अपवित्र है, इसलिए हम पूछते हैं हाउ कैन इट बी पॉसिबल। एक्चुअली दिस हैज टू बी डन। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तब हमको सर्वत्र सभी चीजों में, टेबल में, कुर्सी में, लाठी में, एक पेंसिल में हमको भगवान दिखेगा। और फिर हम पेंसिल को फेंकेंगे नहीं, पेंसिल को अपन सावधानी से रखेंगे। झाड़ू को फेंकेंगे नहीं, झाड़ू को सावधानी रखेंगे, इसमें भगवान। तो नहीं महाराज, इसमें मेरा प्रॉब्लम एक और आ रहा है कि जो मनुष्य में कॉन्शियसनेस है और ये टेबल में और झाड़ू में कॉन्शियसनेस है, तो मनुष्य की कॉन्शियसनेस से मनुष्य ईश्वर की तरफ जाने की प्रेरणा उसको मिलती है और वो पहुंचने की कोशिश करता है। पर ये टेबल और ये कैसे करेंगे? अरे तो ये मनुष्य में इतनी है, उसके अंदर से 99% लोग तो ईश्वर की तरफ नहीं जाते हैं जी। तो फिर तुम कैसे बोलते हो कि ईश्वर के जो जाते हैं? कौन जाता है ईश्वर की ओर? 99.99% लोग नहीं जाते हैं ईश्वर की ओर। तुमने कैसे मान दिया कि वो कॉन्शियसनेस से तो कर सकता है? और कुत्ते में तो कॉन्शियस नहीं है, लेकिन कई बार कुछ कुत्ते भी होते हैं जो जाते हैं चुपचाप। हमारे यहाँ पे वाराणसी सेवाश्रम में एक कुत्ता था, तो वो आरती जब होती थी तो चुपचाप जाके वहां पे बैठ जाएगा सामने। अभी आप ये बोल सकते हो कि उसके बाद में उसको प्रसाद का मोह था कि निकलेगा तो एक बताशा मिलेगा। अरे हम लोग भी तो है ना, ये सब प्रसाद के मोह के लिए अधिकांश लोग जाते हैं वहां पे मंदिर में, ऐसा मत समझना। तो उसको भी तो कॉन्शियसनेस है। तो ये कॉन्शियसनेस तो बाबा, उसको कॉन्शियसनेस के ऊपर इतना पॉइंट क्यों बना रहे हो तुम? जी जी। अच्छा महाराज, एक सिर्फ छोटा सा ये था जो पढ़ा था कि युधिष्ठिर एंड हिज फेथफुल डॉग, तो उसको भी स्वर्ग मिला था, तो इट वाज बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या युधिष्ठिर? हाँ, युधिष्ठिर के साथ जो कुत्ता था, हाँ, तो उसको युधिष्ठिर के साथ अटैचमेंट था जी। युधिष्ठिर के साथ उसने पकड़ रखा था बस, और कुछ नहीं। अब वो एक निष्ठा के कारण वहां जब वहां गया तो युधिष्ठिर ने कहा कि इसको छोड़ दो, देखिए नहीं, इसने मेरी निष्ठा को मुझे पकड़ा रहा है, मैं कैसे छोड़ूंगा इसको। तो अब ये तो निर्भर करता है कैसे हमारी निष्ठा है जी। बोलते हो कि भगवान ईश्वर, ये हमारे में, ईश्वर में, मानव में ही क्षमता है ईश्वर के लिए, ये मैंने माना जी। लेकिन होते हुए भी कितने लोग उसका उपयोग करते हैं? तो उसको आप श्रेष्ठ बनाओगे, किसको श्रेष्ठ बनाओगे? ऐसा मानव जिसको ईश्वर दर्शन की क्षमता भगवान ने दी है, उसके बाद में भी अगर नहीं करे तो वो तो और भी गया बीता हुआ ना जी, जी। इसको पॉइंट ऐसा, वो तो मैंने मानव की दुर्बलता का पॉइंट हो गया, मानव की विशेषता का पॉइंट कहाँ हुआ जी? नेक्स्ट क्वेश्चन। The body is wonderful temple. The personality of man has three components: body, mind, and spirit. The body is interpenetrated and
permitted by the mind and the mind by the spirit. They are respectively parts of the cosmic body, mind, and in the infinite spirit. We are not separate from the cosmic existence, and the truth we have to experience through sadhana, we must process step by step. ये कौन से स्टेप बाय स्टेप से हम इनको पूरा, तो ये जितनी साधना है वो सब स्टेप्स तो दी गई है, इसी को तो स्टेप्स बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप यानी क्या, जितनी साधना है उसमें अपने को भगवान के साथ जोड़ना है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में जोड़ने की ही सारी साधनाएं हैं। व्हाट इज द साधना में, सारी साधनाएं इसी के लिए है। पहले हम जाने कि हमारे 3 शरीर हैं, वैसे ही परमात्मा के सर्वव्यापी है और हमारे शरीर और उनके अंग है, ये जानने के लिए, समझने के लिए ही सारी साधनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की साधनाएं। जो साधना आपको ठीक लगे उसको करो, वो करें। हाँ, महाराज मेरा आखिरी एक सवाल है जी। If we meditate on an angry, frowning person, we too become angry and become dangerous creatures. Then to meditate on the deity Ma Jagdamba and Ma Kali, what will be our state of mind? निवेदिता इसका जवाब दो तो। ये बोलते हैं जो भक्त, जो साधक है वो माँ काली को प्रेम रूप ही देखेगा। वो तो कभी वो तो कभी वो देखता ही नहीं है उसको। उसको कभी माँ काली तो आपको गुस्सा वाली तो दिखती ही नहीं है। ये अपने ये दिलीप भाई को ही गुस्से वाली दिखती है। जो भक्त पूजा करता है उसको नहीं दिखता, वो तो प्रेम रूप देखेगा। माँ काली गुस्से वाली बताया है। बाबा तुम मत जाना उनके पास में। नहीं तो इतने गाने कैसे आते हैं काली कीर्तन। महाराज मेरा ये सवाल है कि माँ का जो रूप है वो रौद्र रूप है। अरे राम के हाथ में भी धनुष्मान है, पर वो रौद्र रूप में नहीं है। तो धनुष्मान क्यों रखा है उन्होंने? तो भक्त तो कभी धनुष्मान देखता ही नहीं है। और माँ की जो जीभ निकली हो तो भक्त को तो लगता है कि माँ हंस रही है। तो तुम्ही को गुस्सा लगता है तो तुम जानो बाबा। जी माँ। अच्छा, तुम्हारा नवा प्रश्न था क्या, कॉस्मिक अवेयरनेस का पॉइंट? जी हाँ, we are not separate from the cosmic existence and truth we have to experience through sadhana, we must process step by step। ये था बस। वो तो मैंने बता दिया उसको। बस खत्म, we don't नहीं मालूम हो गया। ऐसा है कि या तो सोच के कि आकाश स्पेस से वैसा करो, और या फिर भगवान के साथ में कोई प्रेम का संबंध स्थापित करो, भक्ति का संबंध स्थापित करो, या ज्ञान से जाओ। ठीक है जी महाराज। अच्छा, सपना मुखर्जी। चलो बोलो। हाँ, actually in the it's mentioned that dive deep. Dive deep. Dive deep. हाँ। क्या? Dive deep. Die in peace. Dive deep. Dive deep. शांति से मरना? नहीं, अंदर जाओ, मतलब डूबे जाओ। yes, डूबे जाओ। In meditation, yes. आरो तो प्रश्न चलो, आरो प्रश्न नहीं? हाँ, अच्छे। चलो बोलो। Another question is, the Swami Brahmananda had said, think of your Ishta Devata as blissful and conscious. Very nerves will react to the sound and tone. So by thinking thus, the mind becomes quiet. कुछ सुनाई नहीं दिया। Energy. We feel expanded and joyful. So could you please explain this, that we feel expanded? नहीं समझ में नहीं, क्वेश्चन फिर से पूछो। Okay.
Swami Brahmananda had said, think of your Ishta, हाँ think of your Ishta Devata as blissful हाँ and conscious. हाँ Then your very nerves will react to the sound and form. हाँ By thinking thus, the mind becomes calm and quiet. The nerves, the nerves receive new energy. हाँ And we feel expanded. तो उसमें क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है, आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए that we feel expanded. What is the meaning of expansion? नहीं नहीं, ये तो एक बोलने का, हमारे हृदय विस्तार होए, हृदय विस्तार हो गए, भगवान का इष्ट का चिंतन करेंगे कि वे आनंदमय हैं, करुणामय हैं, तो हमारा हृदय में आनंद आएगा, हृदय का विस्तार होगा। हृदय जो है, यू फील एक्सपांडेड, यू फील एनर्जी। एक्चुअली करके देखो ना, तुमको एक्चुअली लगेगा कि हाँ हृदय मेरा भर गया। अच्छा अच्छा, आनंद से हृदय मेरा भर गया, तो भर गया यानी एक्सपांड हो गया, मेरे में एनर्जी आ गई है। चलो सेकंड। एंड सेकंड इज ड्यूरिंग मेडिटेशन कभी कभी मन जो इधर उधर भागता है, उसमें हाउ टू इंक्रीज आवर अवेयरनेस so that we can notice the moment of the beginning of the diversion of our mind. ऐसा है कि ऐसा करो, शुरू शुरू में पहले क्या करो कि मेडिटेशन में जल्दी डाइवर्शन होता है तो शुरू शुरू में थोड़ा सा लीला चिंतन कर लेना चाहिए, या फिर इष्ट का चिंतन थोड़ा सा पाठ कर लो, उसके बाद लीला चिंतन कर लो, और लीला चिंतन करते करते उसमें जहां पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट जो अच्छा लगे उसमें रुक के वहां पर ध्यान करने लगे। तो ऐसा करने पे, और उसके बाद में क्या होगा, उसमें क्या क्वालिटी की बात है क्या मेडिटेशन की? नहीं, क्वालिटी sometimes we try to think about the noble attributes, and then mind goes for related incidents, the lila chintan. नहीं, तो first of all you do lila chintan, okay, and then you go to lila attributes. Very good. No, we should concentrate on one quality of our ishta. अरे फर्स्ट ऑफ ऑल, अबे तो मन तो भागता रहता है, जब तक भागेगा तब तक भागेगा, तब तक लीला चिंतन करना। उसके बाद में लीला चिंतन में फिर एक ही रूप अच्छा लगेगा ठाकुर को, बस मन अपने बच्चे बैठे हुए हैं अपने कमरे में, अपने खटिया पे बैठे हुए हैं, उस पे पहले इधर उधर ठाकुर के साथ घूम रहे थे, तुम वहां जा रहे थे, पंचवटी में जा रहे थे, अब एक ही टेबल पे बैठे हुए, कुर्सी पे और खटिया पे बैठे हुए हैं, और उनका भाव जो है वो आनंदमय है, बस उसमें लगे रहो। अब तुमको आनंद के ठाकुर का करुणामय भाव लगता है तो उसमें लगे रहो, जो तुमको भाव अच्छा लगे, क्वालिटी अच्छी लगे, उसमें लगे रहो। ओके 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 महाराज। हाँ प्रणाम महाराज। नहीं, वो डाइव डीप का क्या हुआ? हाँ, डाइव डीप एक्चुअली डाइव डीप जो है वो फर्स्ट आर्टिकल में था वो। अच्छा, डाइव डीप का व्हाट इज योर क्वेश्चन? Can you please explain it? Dive deep, how to practical approach. डूब 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 रूप सागर है हमार मन। yes. और ठाकुर बार बार बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक सागर है, उसके ऊपर लहरें उठ रही हैं, तो वो क्या है, बिखरा हुआ है, मन इधर उधर मानो भाग रहा है। अगर ऊपर की तरफ सतह पर मन रहेगा तो चंचल रहेगा, छोटी मोटी चीजों पर देखेगा, ठाकुर की कहानी के कपड़े पे को देखेगा, ठाकुर घूम रहे हैं उसको देखेगा, उसकी गहराई में नहीं जाएगा। तो ये हुआ सुपरफिशियल रहने पे। उसके बाद में वो एक स्थान पे आ गए, डाइव डीप, यानी पहला हुआ डिस्कर्सिव मेडिटेशन, इधर उधर मन भाग रहा है, उसके बाद में मन एक पॉइंट पे रह गया, उसके बाद में एक स्थान पर ठाकुर का, मैंने जैसे कहा था, करुणामय रूप में रह गया, और उसके में गहरी लग गया। सो पहले तो डिस्कर्शन खत्म हुआ और एक रूप में लगा मन जी। उसके बाद एक रूप के साथ उसके पीछे जो कॉन्शियसनेस है वो ठाकुर की प्योर कॉन्शियसनेस में लगा,
और फिर उसके बाद में कंटिन्यूअसली उसी में लगा रहा आधे अच्छा। घंटे तक, एक ही रूप और एक ही कॉन्शियसनेस बनी रही। जी तो जी उसके जी 3 लेवल्स हो गए। पहले हुआ डिस्कर्सिव मेडिटेशन, इधर उधर मन भाग रहा है, लीला चिंतन इत्यादि। जी उसके बाद सेकंड लेवल हुआ कि एक ही रूप में लगा हुआ है और एक में भी कॉन्शियस रूप में या उनकी क्वालिटी में रखा हुआ है। और जी। थर्ड लेवल हुआ कि वो कंटिन्यूअसली वही बना हुआ है। हाँ। ये हुआ डीप डाइव, डीप का अर्थ। अच्छा अच्छा, अच्छा, हो उसके गया बाद हाँ। में प्रणाम महाराज। अच्छा, उसके बाद में और कोई हो गया? हो गया महाराज। अच्छा, अब इसके बाद में कौन है? महाराज मेरा भी एक प्रश्न है। अभी तुम्हारा हो गया, अभी ठहर जाओ, पहले दूसरे लोगों को तो विचार करने दो। जी इतु घोष, जी प्रणाम महाराज। तुम्हारा प्रश्न बोलो। मेरा प्रश्न है, इन मेडिटेशन थिंकिंग अबाउट द एट्रीब्यूट्स इज पॉसिबल, व्हाइल जपम ओनली थिंकिंग अबाउट द फॉर्म और द लोटस फीट इज पॉसिबल, बट No, not why? means I can't do. That is, you can't do, that's a different thing. But the fact is that japa can represents everything. that Even japa attribute. अर्थ भावनम, तो अर्थ भगवान का जप करोगे तो अर्थ का चिंतन करोगे, राम कृष्ण नाम का जप करोगे तो राम कृष्ण का अर्थ चिंतन करोगे। तो राम कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? एक शरीरधारी मानव का हुआ क्या? वो तो अवतार हुए, उसमें करुणामय हैं, प्रेममय हैं, जगत का उद्धार करने वाले हैं। तो राम कृष्ण नाम का उच्चारण करोगे तो उसमें अर्थ भावना में उनके एट्रीब्यूट्स भी आ गए, उनकी कॉन्शियसनेस आ गई, गॉड हेड आ गया, एवरीथिंग आ गया। नहीं तो कैसे जप करोगे? जप के साथ ध्यान होता ही है। जप लीड्स टू मेडिटेशन। जप यानी ठीक जप करने पर भी डेफिनेटली इट मस्ट लीड टू मेडिटेशन। Second question is, while japam, do we have to think of the meaning of the mantra every time or on the whole? अच्छा, तुम्हें तुम्हारे छेले में किसी का नाम लेओगे तो हर बार क्या उनका नाम के साथ में उनका अर्थ चिंतन करते हो क्या? नहीं। तो वो तो हम मन में हर चिंतन तो अच्छी तरह मन में बैठ गया है ना, मीनिंग। अच्छा, हाँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हर बार चिंतन नहीं करना। अच्छा, वो अर्थ जो है वो अच्छी तरह बैठ जाएगा। अरे हम तो लीला प्रसंग पढ़ते हैं, वचनामृत पढ़ते हैं, श्री राम कृष्ण को जैसा हमने देखा इतना सारा पढ़ा है, तो वो क्या सब एक साथ मन में आएगा क्या? और सारा का सारा जो है वो रामकृष्ण शब्द के अंदर आ जाता। जी। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो उसको केवल एक रूप दिखेगा, लेकिन हमारे को तो रामकृष्ण का अर्थ जो है वो कंडेंस्ड अर्थ, हमने इतना सब पढ़ा, इतने वर्षों तक चिंतन किया, वो है। नहीं हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? जी, समझ में आ गया। अच्छा। The third question is, we chant all the mantras, means this is not from this topic, but without knowing the full word meaning. So how much does it work? क्या? कोई भी मंत्र बोलते हैं ना, जैसे काली का मंत्र बोला, लेकिन सब अर्थ तो पता नहीं है, तो does it work? तो पता लगाओ उसमें क्या है, ये क्या बात है? अच्छा, हाँ, जो मंत्र करोगे उसका मीनिंग पता लगाओ। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है, लेकिन हर वर्ड का तो नहीं आता। तो फिर इतना सारा मंत्र मत करो, जितना अच्छा समझ में आता है उसको अच्छी तरह करो। जी। आधा करेंगे और आधा नहीं करेंगे, ये से कैसे काम चलेगा? ये क्या बात? ठीक है। 10 मंत्र करेंगे और 10 मंत्र सब आधे जानते हैं, ये क्या बात? ठीक, बस इतना ही क्वेश्चन था। अच्छा, तरुण चौरासिया। प्रणाम महाराज। हाँ बोलो। जब हम बहुत दुखी होते हैं
तब हम जप करते हैं, परंतु मन हमारा दुख में ही रहता है। उसी तरह जब हम बहुत खुश होते हैं और जप करते हैं तब हमारा मन बहुत खुश रहता है, यानी कि हाँ। भगवान में पूरी तरह लग नहीं पाता। तो ऐसे में भगवान हाँ। ऐसे में क्या करना चाहिए? मत करो जब। जब तो करना ही है महाराज। अरे मन तो लगता ही नहीं, जब करने से क्या लाभ? तो फिर जब तो करना है। लगाओ, माय पॉइंट इज मन लगाओ। जब का मीनिंग अच्छी तरह समझो। मैंने कहा ना, जब का मीनिंग अच्छी तरह समझो, आंखें खोल के इष्ट को देखो, और जब जब करोगे तब मन ही मन जप को सुनो, मंत्र को सुनो। इंद्रियों का मेक यूज ऑफ द इंद्रियस, आंखें और वाणी को, कान को लगाओ, किसी न किसी तरह से एकाग्र करके करो, नहीं तो क्या लाभ जब का। ये मेरा कहने का मतलब। यानी जब करते हैं, कितने लोग करते चले जाते हैं, कितने साल, 5,000, 5 लाख, 5 साल, 50 साल जब किया, जैसे पहले थे वैसे के वैसे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा होता जाता है, संसार में फंसते चले जाते हैं। और कितने साल जब किया? 50 साल जब, तो क्या फायदा? एक मैकेनिकल करना है, गुरु ने बोल दिया इसलिए करना है, किसी तरह 108 बार कर लिया या 1000 बार कर दिया, बस। ये मेरा कहने का मतलब। करना है तो ठीक से करो। हाँ, नेक्स्ट। ठीक है, समझिए। जब हम जप करते हैं तो मन इधर उधर जाता है, तो अगर हम ऐसा सोचे कि हम बेलूर मठ में बैठे हैं और ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं और जप करते रहे, तो क्या ये सही, ठीक है? अलग 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 करो इसको। ठाकुर के साथ बैठे हुए हम देख रहे हैं उनको, ये ध्यान हो गया। अच्छा, ये लीला चिंतन हो गया। अच्छा। तो लीला चिंतन को अलग करो, जप अलग करो। यानी वो जप के साथ वो इतना डिटेल में चलता नहीं। ठीक है, ठीक हो है गया? जी मैम। विभा, तुम्हारा एक तुम हाँ लोगों का स्वामी जी, प्रश्न हो हाँ गया ना? स्वामी जी हो गया जी स्वामी जी। डिस्कस हो गया। अच्छा, निवेदिता। महाराज, मेरा पहला प्रश्न है, इज इट मैंडेटरी टू मेडिटेट ऑन गुरु इन सहस्त्रार एंड देन मर्ज इनटू इष्टम इन हार्ट? Because we hear from other various places and article में भी नहीं है, that's why I'm asking. यस 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 यस, ये जो आर्टिकल है, हाँ, इसमें गुरु का मेडिटेशन रहस्यसार में नहीं बताया गया। हाँ, ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में गुरु का मेडिटेशन सहस्त्रार में नहीं बताया गया, लेकिन कई इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं कि गुरु का हृदय सहस्त्रार में ध्यान करना बताया गया है, और इष्ट का ध्यान करना है हृदय में। फिर ये भी कहते हैं कि उसके बाद में गुरु का सहस्त्रार में ध्यान करके उसको इष्ट के हृदय में लाके इष्ट में विलीन कर देना। ये इंस्ट्रक्शन, तो जो आपको ठीक लगे, गुरु ने जैसा हम तो, करते आ रहे हैं वही को कंटिन्यू करने का। अब वही जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करो। ठीक। दूसरा जो प्रश्न है, हाउ टू थिंक दैट वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम कॉस्मिक एग्जिस्टेंस? ये तो अभी आपने डिस्कस किया। और डिस्कस कर लिया। हाँ, ओके, ठीक है। या तो एक तो भक्ति के रूप में ये मानो कि आप या भावना, हाँ, या फिर कॉन्शियस ज्ञान के रूप में मानो कि सर्वस्त्र चैतन्य है, हम उसके रूप में। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट डज इट मीन? एक लाइन है, व्हाट डज इट मीन दैट गुरु आल्सो शुड नॉट थिंक ऑफ डिसाइपल as so many possession? What is that mean? वो तो don't worry about, that is not your problem, it is Guru's problem, why do you worry about? Okay. And how to दूसरा, उसके बाद वाला प्रश्न है, how to dwell in the meaning of mantra during meditation repeatedly? ये आपने बताया कि एक भाव बना के रखना है। ऐसा है कि मंत्र का अर्थ क्या है? राम कृष्ण नाम है, ओम राम कृष्ण है, तो ओम राम कृष्ण, रीम राम कृष्ण। राम कृष्ण का अर्थ क्या है? तो राम कृष्ण का अर्थ तो बहुत सारा है, लीला प्रसंग में सारा दिया है, तो इतना सब थोड़ा ही होगा। इतना सब पढ़ते पढ़ते हमारे मन में राम कृष्ण का भाव एक बन जाएगा। ठीक है, समझे ना? तो जब आप ध्यान करोगे तो वो भाव अपने दिमाग में आएगा,
इट विल नॉट मियरली बी फॉर्म, उसके साथ में उनकी क्वालिटीज भी होंगी, चैतन्य सत्ता भी होगी, यह ध्यान भी रहेगा कि वे अवतार हैं, ये सारा का सारा। जी अच्छा, उसके बाद वाला भी अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया, वो एनाटॉमिकल हार्ट एंड स्पिरिचुअल हार्ट, वो तो आपने बताया। एनाटॉमी हार्ट तो नथिंग टू डू विद इट। हाँ यस। अच्छा, उसके बाद वाला प्रश्न है, एट द एंड वी हैव टू कम बैक टू इष्टम एंड अस एंड सरेंडर आवर फ्रूट्स ऑफ मेडिटेशन टू इष्टम, इज इट ओके? क्या बोला एट द एंड? जैसे मेडिटेशन पूरा कर लिया, at the end of meditation we have to come back to ishtam and us, माने myself, and surrender the fruits of meditation to ishtam. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये क्या, पहले हम तो कॉन्शियसनेस में चले जा रहे हैं, अगेन वी हैव टू कम बैक टू फॉर्म में। सारा ध्यान करने के बाद में अब वापस आप संसार में आओगे तो हाँ इसे ही पूछ रही हूँ। तो उस समय कोई ब्रेक तो करोगे ना। संसार भगवान की प्रोसेस आधे घंटे पौन घंटे की प्रोसेस चल रही ध्यान की। हाँ। अब उसके बाद वापस संसार में आना है ना। जी। तब उसमें कैसे करोगे? जो भी किया मैंने उसको मैं ठाकुर को समर्पित करती हूँ और उनके फल को भी समर्पित करती हूँ, ऐसा कह के समर्पण करके यू कम बैक टू नॉर्मल कॉन्शियसनेस, आपकी वापस जागृत अवस्था में आ जाओ, यानी संसार में आ जाओ, ये बात। अच्छा, एक जगह पे आर्टिकल पे लिखा है, in one place it is written that gross and subtle bodies are not matter. हम तो नहीं, there is something wrong there. No, there is something wrong there. It is not, मैंने देखा उसको, it is not written like this. It is not written like this. मैं कागज लाया नहीं, एक मिनट। It is not like this. मैडम आप पेज नंबर या पैरा नंबर बताइए ना, तो ख्याल आ जाएगा। हाँ बता रही हूँ। मैं वो लिख के रखी थी नहीं रहा। नहीं, they are matter. they are matter. they are matter, यानी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी बोथ आर मैटर। ये तो मैटर ही है, दोनों मैटर ही हैं। उल्टा बाय मिस्टेक समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा दैट्स व्हाट। ओके अच्छा, प्रणाम हो गया जी। अच्छा, और किसी को कोई प्रश्न करना है? रीता विश्वाल। महाराज मेरा एक प्रश्न है। यस स्वामी जी, एक मिनट। रीता, my question was the second question that Ituji asked, the same question. It has been answered. Yes, it has been answered. Okay. It was exactly the same question. Okay. ठीक। Yes. अच्छा, श्रीकांत जी। महाराज ये पेज नंबर 104 पे है, इसी आर्टिकल में पेज 104 का सेकंड पैरा है। To have good meditation, we must make use of our natural instincts. It is natural for our senses to seek sense enjoyment, and therefore there is an outward movement. Attention of the senses should be withdrawn from worldly things and turned towards an object inside. इसको जरा हमारा थोड़ा और किस तरह से? अरे यही तो सब क्या कि सेंसेस का मन जो है वो आंख बंद करके बाहर नहीं देखेगा, हृदय में देखेगा जी। अरे सेंस इमेजिनेशन जब कर रहे हैं तो सेंस का मन का जो है बाहर के जगह अंदर का इमेजिनेशन करेगा। सो इट इज द माइंड इटसेल्फ। सेंसेस मींस इनर आई, यानी हमारी एक रात को सपने में तो इतना सब देखते हैं तो आंख तो बंद होती है। That means we have an inner eye, we have an inner ear. तो जब हम ध्यान करने बैठेंगे तो इमेजिन करिए कि सोचिए कि हृदय में स्पेस है और उसमें इमेजिन करिए कि लोटस है इत्यादि जी। सो इट इज द इंटरनल आई। और फिर जैसे मैंने कहा कि मंत्र का जप करो और मन ही मन सुनो,
that is the internal ear. समझे ना, ईयर का भी यूज हो गया. So महाराज इसी में आगे लिखा है, महाराज इसी में आगे लिखा है, self love is instinctive in man. That self love should be properly directed to its true object. That means atma. अच्छा, okay. Self love, again the same thing. Self love means physical body को हमने self मान लिया. अब मेरे को किसी ने डांट दिया, गाली दे दी तो मेरे को बुरा लगा, मैंने माइंड को अपना सेल्फ बॉडी मान लिया. बट इंस्टेड ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, आत्मा, सेल्फ मीन्स आत्मा, तो मैंने लव द आत्मा. ओके जी मैम. सतीश चुपचाप सुनते रहे, कुछ पूछा नहीं. अच्छा भाई, ठीक है फिर जी. ओम शांति शांति शांति. श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु. प्रणाम महाराज.